Hello everyone. Till the previous lecture we had studied till the description of tropical deciduous forest. From this lecture onwards we will begin with the third category of forest, that is described as the thorn forest, right. Now before we begin with thorn forest, let us first take a brief view that what does these forests consist of first, and there are some kind of special characteristics which are associated with it, right. Now when we discuss about the vegetation which is related to places which are arid regions or the desert regions, these regions will definitely have some different kind of vegetation which will absorb first moisture from the ground, and that moisture will be stored in some part of the plant which will be beneficial or used at some other later stage. So, whatever kind of vegetation that you find in the arid or semi-arid regions, the vegetations have the structure of the leaves first, the structure of stem and the roots which are penetrating deep into the ground or into the soil, which continuously absorbs water and hence is required at different stages. So, this kind of division or this kind of forest are found particularly in regions where there is scarcity or scanty rainfall, particularly less than 70 centimeters, right. The criteria is first less than 70 centimeter, the second is the roots are deep, second the water that comes out from the roots is stored in the stem and the leaves are fleshy. So, the leaves are fleshy, but are not very broad enough, are narrow, so that the rate of transpiration of these leaves is less, and hence the water loss from these leaves is reduced to much a level, and it can store water for the rest of the part, right. So, the thorn forest are basically concentrated in particular parts of India where you cannot locate or where you cannot find much rainfall. The characteristic rainfall is an important criteria for defining these kinds of forest. Moving on further, when we study this, we had already covered this part when you study the chapter climate, that when we are concentrated with these regions, there are certain parts of India which lies in the dry zones. There are certain regions which are lying. So, these dry zones will mostly experience such a kind of vegetation that is found there. So, we start with the description. We are on to the third category, that is referred to as thorn forest. The first criteria that is important here is the criteria of rainfall, which is less than 70 centimeters. Second criteria, found in areas where there is scanty rainfall, leaves, stem and roots help in the process of transpiration it is for the water loss to be minimal. Now, in regions where we can find this kind of vegetation is north-west part of the country, that is Gujarat,
Rajasthan, the other regions are Chhattisgarh, parts of Haryana and UP. The vegetation that is mainly growing here is the common vegetation is cactus. Other type of trees that are growing here are whatever kind of vegetation that we have mentioned over here is the vegetation which requires less of water, the requirement of water is minimum. The wildlife is also at the same time dependent upon this vegetation. For example, let us take the example of camel. Why camel is found in desert region is because that it can store water for long, and during the dry summer times, the dry summer spell, it can live with that stored water in its hump. So, the vegetation and definitely the wildlife is interdependent upon each other. Moving on further, the next category of forest is related to montane forest. The exact location of these forests is with the mountainous region. According to the heights that are found in this region of the trees, we have three categories or three divisions. The first division is tundra, second coniferous, and the third division is alpine. The height of the trees that are found here is, this is above 3600 meters, this is from 1500 to 3000 meters, and this is from 1000 to 2000 meters. Basically, a montane forest will have the structure like that of a slope, wherein the snowfall will automatically slide down from the slopes. The speciality of these trees are the structure of the tree. It resembles like pointed from above, and it will have a structure of falling leaves, which gives it that whenever there is a snowfall, if the snow deposits on the tip, it will definitely affect the growth of the tree and eventually will destroy the tree. So, the natural structure of these coniferous forests is such that automatically the snow that falls slopes down its leaves, and hence creating this type of forest. So, there are three divisions based on the height, different types of height of the trees. If the height is between 1000 meters to 2000 meter, this type of vegetation is known as tundra vegetation. The second one is coniferous, wherein the height is from 1500 to 3000 meters, and then the third one is alpine, that is above 3600 meters. The kind of trees that are found here are silver fir. The next type is
junipers, pines, the wildlife which is famous will relate to animals which are basically yak, Tibetan antelope, definitely the animals which will survive in this region will definitely have a very thick fur to resist the cold temperature and the cold weather conditions prevailing there. So, the wildlife and vegetation are interdependent upon each other, right. The next category of forest that we have is, and the last category, the last category relates to mangrove forest. These forests are also known as tidal forest and are mainly located between the like there are some of the deltas which we commonly know. One is the delta which is formed by Ganga and Brahmaputra, which is known as Sundarban Delta. The other one is formed by Godavari, Krishna, Mahanadi, etc. Right. We also know the famous Sundarban Delta is particularly famous for Sundari trees. सबसे ज़्यादा वो जिस ट्री के लिए जाना जाता है वो सुंदरी ट्रीज़ हैं और जो वाइल्ड लाइफ वहाँ पर पाई जाती है दैट इज़ ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स फॉर विच इट इज़ फेमस, राइट. नाउ इन मैनग्रोव फॉरेस्ट की खासियत, और इनको टाइडल फॉरेस्ट इसलिए बोला जाता है, जो इनकी रूट्स होती हैं, इनकी हाइट एक तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इनकी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स हमेशा सबमर्ज्ड रहती हैं वाटर में, और दूसरा इनका जो झुकाव होता है वो झुकाव वाटर की तरफ ज़्यादा होता है. मतलब जब ये ग्रो करते हैं तो ग्रो करने के टाइम पर इनका जो टिल्ट है वो टिल्ट वाटर की तरफ ज़्यादा देखा जाता है, irrespective of other things, right. So these the thing which affects their growth is mostly mud and silt which gets accumulated राइट. जो मड और सिल्ट है वो एक्यूमुलेट ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बेसिकली हम इन ट्रीज़ की ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर आपको जो ट्री सबसे ज़्यादा पाई जाएंगी या जो वेजिटेशन जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, डेफिनेटली एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, दैट इज़ सुंदरी ट्रीज़. उसके अलावा ये जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, दोज इंक्लूड timber, and apart from timber you will find here palm, coconut, and also agar. The wildlife which is found here, the famous wild animals, that is Royal Bengal tiger, the other one is
You can also find turtles over here. You can find ghadial and etc. various other animals, right? So this covers our forest area. We move on to the next section. हमने जब इन forest को या plant species की बात करी या एनिमल स्पीशीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ 3 कैटेगरी की स्पीशीज़ आती हैं, ठीक है। हम 3 कैटेगरीज में स्पीशीज़ को बाइफरकेट करते हैं। कुछ स्पीशीज़ को हम बोलते हैं वल्नरेबल, कुछ स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट और कुछ स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड। तो ये जो हमने तीनों कैटेगरीज बनाई हैं, इन तीनों कैटेगरीज का डिफ्रेंसिएशन कैसा है? जो स्पीशीज़ वल्नरेबल बोली गई, वो वल्नरेबल का मतलब है कि अभी उनका नंबर नॉर्मल चल रहा है, मतलब अभी उनके नंबर में कोई खतरा नहीं है। बट इफ़ करंट रेट ऑफ हंटिंग और डिक्लिनेशन गोज़ ऑन, तो उनका फिर नंबर जब रिड्यूस होगा तो नंबर रिड्यूस होने में जो खतरे की जोन पर लाए करते हैं उन स्पीशीज़ को क्या बोला जाता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोला जाता है, जो डेंजर जोन में है। और तीसरी कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, जो कि विलुप्त हो चुके हैं या जो ख़त्म हो चुके हैं, जिनकी अब एग्जिस्टेंस अपन नहीं देख सकते, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज में हम एनिमल स्पीशीज़ को क्लासीफाई करते हैं। नाउ मूविंग ऑन फर्दर टू द सेक्शन विच डील्स विद वाइल्ड लाइफ। हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि हमारे पास 90,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जिसमें से ये अपनी पूरी वर्ल्ड के एनिमल स्पीशीज़ का 13% कॉम्प्राइज करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमनली हमको मिल जाते हैं, बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि स्पेशलिटी हैं हमारी खुद की कंट्री की, डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन एंड द प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट। तो कुछ चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जब एनिमल्स की हंटिंग होती थी बहुत ज़्यादा, तो इतनी ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग हुई जिसकी वजह से हमें कॉमन स्पीशीज़ को बचाने के लिए भी स्टेप लेना पड़ा। तो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास करवाई गई थी, विच प्रिवेंट्स द स्पीशीज़ विच आर लाइंग इन एनी ऑफ द जोन्स, या तो जो थ्रेटन्ड लिस्ट में आते हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो एंडेंजर्ड हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका नंबर सेफ रखने के लिए ये एक्ट बनाई गई थी, ठीक है। जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं या जो गिर फॉरेस्ट हैं गुजरात में, जो कि इंडियन लॉयन को प्रोटेक्ट करें, वो सिर्फ ऐसा हैबिटेट रह गया है, नेचुरल हैबिटेट, जो कि लायंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। और इंडिया ऐसी कंट्री है ओनली विच हैज़ बोथ लायंस एंड टाइगर्स, जिनके पास दोनों की पॉपुलेशन मौजूद है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश में टाइगर्स मिलते हैं, सुंदरबन में मिलते हैं, हिमालयन रीजन्स में मिलते हैं, दीज आर फाउंड टाइगर्स जो हैं इनकी पॉपुलेशन इन एरियाज़ में ज़्यादा है, ठीक है। बाकी कुछ एनिमल्स नो डाउट हर जगह पर कॉमन हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स हो गए, घड़ियाल्स हो गए, डियर्स हो गए। सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स विच कैन बी फाउंड हियर। बर्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हम वाइल्ड लाइफ में दोनों स्पीशीज़ को कंसीडर करते हैं। हम एनिमल्स के बारे में भी बात करते हैं और हम बर्ड्स के बारे में भी बात करते हैं। इंडिया की बर्ड लाइफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कलरफुल बर्ड लाइफ है और यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेस्ट जो हैं वो इन बर्ड्स को इनहैबिट भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी बर्ड्स भी हैं इंडिया में जो माइग्रेट होकर आती हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और उस टाइम पीरियड के बाद वापस अपने जहाँ से ओरिजिन है वहाँ पर लौटकर चली जाती हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने इतने टाइम पर, मतलब इतने ज़्यादा समय में हमने जो स्पीशीज़ प्रोटेक्ट करके रखे हैं या हमने जिन स्पीशीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे पर्पस क्या सॉल्व होता है? अगर हम वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ से क्या क्या चीज़ें हैं जो पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी स्पीशी की बात करें तो एक तो ये फूड चेन को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं सबसे पहला, जिसकी वजह से अपना जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम चल रहा है, ठीक। दूसरा, बिग एनिमल्स जितने भी हैं
they are dependent upon small animals for food. और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरह की प्रोटेक्टिव जोन्स हैं. हमने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और तीसरे हैं बायोस्फीयर रिजर्व. हमने तीनों अलग अलग जोन्स बनाए हुए हैं जो कि इन एनिमल्स को और प्लांट की स्पीशीज़ को बचा के रखने का काम कर रहे हैं. जो नेशनल पार्क्स होते हैं, ये नेशनल पार्क्स सिर्फ मतलब दोनों स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट प्लस एनिमल्स. ये वाले सिर्फ एनिमल्स के लिए बने हैं. बायोस्फीयर रिजर्व एनिमल्स प्लस प्लांट्स प्लस हेरिटेज साइट्स. तो ये हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहे हैं, उनको भी बचा के रखते हैं और इनकी मेंटेनेंस अलग अलग डिपार्टमेंट से होती है. जैसे नेशनल पार्क्स का जो फंड है, ये नेशनल पार्क्स का फंड पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है. वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का फंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है. और बायोस्फीयर रिजर्व्स को मेंटेनेंस का काम जो है वो यूनेस्को करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है. देयर आर 3 जोन्स इन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड दीज एरियाज. अपने पास टोटल नंबर इनका पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है. इनका टोटल नंबर नेशनल पार्क्स का और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का कितना है. देयर आर 3 जोन्स जहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं. वी डेफिनेटली ऑफन समटाइम्स गो टू विजिट दीज प्लेसेस. तो हमारे पास 3 जोन होती हैं. एक होती है बफर जोन, दूसरी होती है हमारे पास ट्रांजिशन जोन, और तीसरी हमारे पास जो जोन होती है वो होती है कोर जोन. तो इस कोर जोन तक तो जाना अलाउड नहीं होता. डेफिनेटली ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए मेंट है जो उन लोगों की उन एनिमल्स की देखरेख कर रहे होते हैं. ट्रांजिशन जोन तक जो रिसर्चर्स होते हैं और जो कॉमन लोग हैं विद ड्यू परमिशन दे कैन रीच देयर. बफर जोन इज ओपन फॉर ऑल. इस बफर जोन तक कॉमन पीपल की एंट्री जो है वो अलाउड है. ठीक है, अपने पास टोटल नंबर में कितने रिजर्व्स अवेलेबल हैं. अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास 18 इन नंबर है. अगर अपन नेशनल पार्क्स की बात करें तो हमारे पास जो नेशनल पार्क्स हैं वो 1 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं. वो 535 हैं. ठीक है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट राइनो, टाइगर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च करे गए थे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर्पस के लिए. और फाइनेंशियल असिस्टेंस डेफिनेटली मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ बोटैनिकल गार्डन्स. जो कि स्टार्ट किया गया था 1992 में. ठीक है, अब इनका रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से हमको ये मेंटेन करने की ज़रूरत है. डेफिनेटली इनको बहुत बड़ा थ्रेट है
हंटर्स से, जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए इनको हंट कर रहे हैं। एनिमल्स की स्किन देख लीजिए आप, या एनिमल्स की कोई भी जैसे आइवरी देख लीजिए, एनिमल्स को हंट किया जाता है डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई पार्ट को सेल करने के लिए। सो दीज आर बिकॉज ऑफ द नीड्स ऑफ ग्रीडी हंटर दैट देयर इज़ अ थ्रेट। सेकेंड इज़ पोल्यूशन लेवल जो है, इंडस्ट्रियल केमिकल जितना भी वेस्ट निकल रहा है, जो डिस्पोज हो रहा है, एसिड डिपॉजिट्स जो हो रहे हैं, कुछ एलियन स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन हो गया है, फॉरेस्ट की रेकलेस कटिंग हो गई है, या फिर इनका जो माइग्रेशन है वो माइग्रेशन क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा। सो दीज ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच एन इम्बैलेंस इन द काइंड ऑफ movement which these animals are doing or these birds are doing. So these all are the steps which are taken. So we complete the chapter over the steps which are taken by the government with respect to protection of wildlife species in India. Thank you so much.